اسٹیج پہ جلوہ فرما علماء اکرام، حفاظ اکرام، ائمہ مساجد، عزیز طلبہ، نوجوانان اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ یأمرکم بالعدل، صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے رسول کی نسبت تجھے اجالوں سے، میرے رسول کی نسبت تجھے اجالوں سے، میں تیرا ذکر کروں صبح کے حوالوں سے، نہ میری نعت کی محتاج ذات ہے تیری، نہ تیری مدح ہے ممکن میرے خیالوں سے، تو روشنی کا پیغمبر ہے پر ہمارے یہاں دل و دماغ ہے پر نفرتوں کے جالوں سے۔ آئیے حضرات، انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ حضور رحمت عالم، نور مجسم، سرور عالم، ارواحنا فداء محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ۔ میں دوستو عزیز ساتھیوں، یہاں پہ ہم اور آپ اکٹھا ہوئے ہیں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر سننے کے لیے، اور اپنی جانکاری کے اندر دینی معلومات کا اضافہ کرنے کے لیے۔ میں دوستو عزیز ساتھیوں، دینی جانکاری ہمارے اور آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ جانکاری کے بغیر آپ آگے بڑھ نہیں سکتے ہو۔ کسی نے کہا تھا کہ جانکاری ایک طاقت ہے، ایک پاور ہے، لیکن ٹھیک بات یہ ہے کہ صرف جانکاری طاقت نہیں ہے، بلکہ اس جانکاری پہ عمل کرنا یہ بڑی طاقت ہے۔ اگر آپ جان بھی جائیں گے کہ نماز فرض ہے اور پڑھیں گے نہیں تو آپ طاقتور نہیں ہو پائیں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ سود حرام ہے، بیاج حرام ہے، لیکن پھر بھی انسان لوگ لے رہے ہیں۔ آپ جان رہے ہیں کہ شراب حرام ہے، لیکن پھر بھی شراب کے اڈوں پہ جائیے آپ کو شرابی نظر آ جائیں گے۔ تو جانتے بہت کچھ آپ ہیں کہ حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، لیکن آپ جانکاری پہ عمل نہیں کر رہے ہیں، اسی لیے آپ دنیا میں کمزور ہیں۔ جس دن آپ جانکاری پہ عمل کرنا شروع کر دیں گے، انشاءاللہ آپ اس دن کامیاب ہونا شروع ہو جائیں گے۔ میں دوستو عزیز ساتھیوں، جلسہ کرنا سیکھ لیا، تقریریں کرنا سیکھ لی، نعتیں سنانا سب سیکھ لیا، لوگوں کو بلانا سیکھ لیا، اب خدا کے بندوں عمل کرنا بھی سیکھ لو۔ جس دن عمل کرنا انشاءاللہ سیکھ جائیں گے، اس دن ہم اور آپ انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، قرآن مقدس کا آیا ہے، ان اللہ یأمرکم بالعدل، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے، انصاف کا حکم دیتا ہے۔ انصاف صرف یہ نہیں ہے کہ آپ بھائی کے ساتھ انصاف کریں، انصاف صرف یہی نہیں ہے کہ آپ دوستوں کے ساتھ انصاف کریں، انصاف صرف یہی نہیں ہے کہ آپ پڑوسی کے ساتھ انصاف کریں، انصاف صرف یہی نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ انصاف کریں، ماں باپ کے ساتھ انصاف کریں۔ انصاف کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کا جو حق ہے اس کا وہ حق آپ دے دیں، یہ انصاف ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں جس مقصد کے لیے بھیجا ہے، جب ہم اس مقصد کے تحت دنیا میں چلیں گے تو انشاءاللہ ہم اپنے ساتھ انصاف کریں گے۔ میرے دوستو عزیز ساتھیوں، اللہ نے آپ کو یہ ہاتھ دیے ہیں، ہاتھوں کے ساتھ بھی انصاف ضروری ہے۔ اللہ نے آپ کو آنکھیں دی ہیں، ان آنکھوں کے ساتھ بھی انصاف ضروری ہے۔ اللہ نے آپ کو ایک قدم دیے ہیں، ان قدموں کے ساتھ بھی انصاف ضروری ہے۔ اللہ نے آپ کو زبان دی ہے، اس زبان کے ساتھ انصاف کرنا بھی ضروری ہے۔ اور اس کا انصاف کیا ہے؟ اللہ نے جو چیز جس کے لیے بنائی ہے اس کو اسی میں یوز کیجئے، اس کو اسی میں استعمال کیجئے۔ یہ زبان ہے، اگر آپ اس سے گانا گائیں گے، اگر آپ اس سے گالیاں دیں گے، اگر آپ اس سے طعنہ کریں گے، یہ زبان کے ساتھ ناانصافی ہوگی۔ اور اسی زبان پہ اگر نبی کی نعت کے نغمے ہوں گے، اسی زبان پہ اگر قرآن پاک کی تلاوت ہوگی، اسی زبان پہ اگر قال اللہ قال رسول کی صدائے بلند ہوگی، تو انشاءاللہ رب تبارک و تعالیٰ آپ سے خوش ہوگا اور یہ زبان کے ساتھ انصاف ہوگا۔ یہ قدم ہے، اگر یہ قدم شراب خانے کی طرف جائیں گے، یہ قدم جوا کے اڈوں پہ جائیں گے، یہ قدموں کے ساتھ ناانصافی ہوگی، یہ قدموں پہ
पे जुल्म होगा। और यही कदम जब मस्जिद की जानिब बढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह हर कदम के बदले में 10 नेकियां लिखी जाएंगी और हर कदम के बदले में 10 गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। मेरे दोस्तों, अजीज साथियों, ये रब ने आपको आंखें दी है। अगर इन्हीं आंखों से आप मोबाइल पे फिल्में देखोगे, मोबाइल पे गाने सुनोगे, इन आंखों से आप हराम चीजों को देखोगे, ये आंखों के साथ नाइंसाफी होगी, ये आंखों पे जुल्म होगा। और इन्हीं आंखों से खाने काबा को देखोगे, इन्हीं आंखों से रोज़े मुस्तफा को देखोगे, इन्हीं आंखों से कुरान पाक के बरक देखोगे, तो अल्लाह तबारक व तआला इन आंखों के जरिए से आपसे खुश होगा और आपकी आंखें जन्नती आंखें बन जाएंगी। इन्ना समा वल बसरा वल फुआदा कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसूला। रब फरमाता है कि क़यामत के दिन इन कानों के बारे में सवाल होगा, इन आंखों के बारे में सवाल होगा, इस दिल के बारे में सवाल होगा। ऐ मेरे बंदे, ये नेमतें तुझको अता की थी, बता तूने के बदले में अमल क्या किया दुनिया में। उस टाइम हमारे पास कोई जवाब नहीं बन पाएगा। आज दुनिया में भूल गए अल्लाह तबारक व तआला को। हमारे आपके मॉडल पैगंबर आज़म अलैहिस्सलातु व तस्लीम, नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम की जिंदगी को देखो। आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के बारे में हज़रत मुगीरा इब्न शुअबा सहाबी रसूल हैं, वो फरमाते हैं आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम पूरी रात नमाज में खड़े रहे, आपके पांव मुबारक सूज जाते हैं। अर्ज किया जाता है या रसूल अल्लाह, आपके सदके में अल्लाह तबारक व तआला ने अगले और पिछले लोगों के गुनाहों को माफ कर दिया है। भी आप रात रात नमाज पढ़ते हैं, आपके कदम मुबारक सूज जाते हैं। पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं अफला अकूनु अब्दन शुकुरा, क्या मैं अपने अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं। ये शुक्रगुजारी है। लेकिन हम और आप देखें, हम और आप अपनी जिंदगी का मुताला करें, गुनाहों में डूबे हुए हैं, शराब पी रहे हैं, जुआ के अड्डों पे जा रहे हैं। औरतों का हाल देख ले, लड़कियों का हाल देख ले। हालांकि पैगंबर इस्लाम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने दुनिया की कितनी मशक्कतें उठाई। आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम फर्श में सोया करते थे। आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम भूख की वजह से अपने पेट पे पत्थर बांधा करते थे। और हम आप देखें अल्लाह की कितनी नेमतें यूज कर रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला की कितनी नेमतों में हम जिंदगी गुजार रहे हैं। मेरे दोस्तों, अजीज साथियों, एक लुकमा जो आप खाते हैं, इसके पीछे देख रहे हो अल्लाह की कितनी नेमतें लगी हुई हैं। मेरे दोस्तों, अजीज साथियों, एक लुकमा जिसको आप खा रहे हो, एक दाना होता है जो किसी जमीन में बो दिया जाता है। ये वो जमीन है, जब इसके अंदर आप लोहे को डाल दोगे, लोहे को गला के खाक कर देगी। ये वो जमीन है, जब इसके अंदर आप लकड़ी को दफन कर दोगे, लकड़ी कुछ दिनों के बाद खत्म हो जाएगी। ये वो जमीन है, अगर इसके अंदर आप हाथी को डाल दोगे, बैल को डाल दोगे, नमक बना करके चंद टाइम के अंदर ये जमीन खत्म कर देगी। मगर अल्लाह की कुदरत देखो, उसी जमीन में आप एक दाना डाल देते हैं, वो दाना बर्बाद नहीं होता है, वो दाना रायगा नहीं होता है, बल्कि वही एक दाना अल्लाह के फजल से हजारों दाने पैदा करता है और वो हम और आप खाते हुए नजर आते हैं। और दाना, रब ने दाना पैदा कर दिया है, आपको अल्लाह ने दांत अता फरमाए हैं। अगर ये दांत आपको ना दिए जाते, आप ये लुकमा चबाते कैसे? उनसे पूछो दांतों की अहमियत के जो दांतों से महरूम है। फिर आपने ये लुकमा चबा लिया, ये पेट के अंदर चला गया, मैदा इसको पचाना शुरू किया और अल्लाह का निजाम देखिए, सुभान अल्लाह। मैदे ने इसको पचाया, पेशाब मसाने में चला जाता है, खून हमारी रगों में चला जाता है, फजला आंतों में चला जाता है। अगर इसका उल्टा हो जाए, पेशाब रगों में चला जाए और खून मसाने में चला जाए, बताओ इंसान की हालत क्या होगी। ये अल्लाह के बनाए हुए निजाम के तहत हमारा पूरा अंदर का सिस्टम रब की फरमाबरदारी कर रहा है। दिल अल्लाह ने जिसके लिए बनाया है, दिल वो काम कर रहा है। मसाना अल्लाह ने जिसके लिए बनाया है, मसाना वो काम कर रहा है। रगे अल्लाह ने जिसके लिए बनाई है, रगे अपना काम कर रही है। दिमाग अल्लाह ने जिसके लिए बनाया है, दिमाग वो काम कर रहा है। मेरे दोस्तों, हर एक चीज जो हमारे अंदर है अल्लाह के हुक्म की पैरवी करती हुई नजर आ रही है। और आप बाहर की दुनिया को देख लीजिएगा, जो बाहर की दुनिया है वो भी अल्लाह के हुक्म की पैरवी करती हुई नजर आ रही है। ये सूरज अल्लाह के हुक्म से चल रहा है, ये चांद अल्लाह के हुक्म से रोशनी बिखेर रहा है, ये जमीन अल्लाह के हुक्म से सब्ज़े उगा रही है। तो आप देखें दुनिया की जो बाहर की है, जो बाहर की दुनिया है वो भी अल्लाह के हुक्म की ताबे है, और जो अंदर की दुनिया है वो भी अल्लाह के हुक्म के ताबे है। एक बीच में हम हैं जो अल्लाह के हुक्म के ताबे नहीं है, और जिस दिन हम भी अल्लाह के हुक्म के ताबे हो जाएंगे, इंशाअल्लाह दुनिया में हम और आप कामयाब होते हुए नजर आएंगे।
तो कामयाबी जब होगी। सिर्फ जलसा एंजॉयमेंट के लिए नहीं है कि अपने दिल खुश कर लें, यहाँ से एक जज्बा लेकर के उठिए और ये अहद करके उठिए इंशाअल्लाह। नमाज नहीं पढ़ते थे, आप नमाज पढ़ेंगे। आप कुरान की तिलावत नहीं करते थे, तो आप कुरान की तिलावत करेंगे। मेरे दोस्तों, अजीज साथियों, ये चंद दिन की दुनिया है। जब मौत का फरिश्ता तुम्हारे पास आएगा, तुम दुनिया के किसी भी कोने में होगे, वहां मौत तुमको आ जाएगी। ये तुम्हारी अच्छी इमारतें, ये तुम्हारी बिल्डिंगें, ये तुम्हारे घर हवाओं से बचा सकते हैं, तेज तूफानों से बचा सकते हैं, ये आपके घर बारिश से बचा सकते हैं, लेकिन मौत से आपको नहीं बचा सकते हैं। ऐनमा तकूनू, तुम जहां कहीं भी होगे, युद्रिकुमुल मौत वलो कुन्तु फी बुरूजिम मुशय्यदा, मौत तुमको आ जाएगी चाहे तुम मजबूत किलों के अंदर भी होगे। जब तुम मर रहे होगे उस टाइम मौका नहीं होगा, फिर रब की बारगाह में गिड़गिड़ाओगे, मौला थोड़ी सी मोहलत दे दे ताकि मैं नेक काम कर लूं। ऐ मेरे मौला थोड़ा सा टाइम दे दे ताकि खूब सदका करूं और मैं नेक इंसान बन जाऊं। उस वक्त टाइम नहीं मिलेगा, वक्त अभी है, सुधर जाइएगा, मान जाइएगा और रब के फरमान पे अमल करना शुरू कर दीजिएगा। इंशाअल्लाह धीरे धीरे जब आप अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाएंगे, अगर आप जुमा नहीं पढ़ते हैं तो जुमा पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। अगर आप जुमा पढ़ते हैं और कोई नमाज नहीं पढ़ते हैं तो आप एक टाइम की नमाज पढ़िएगा। धीरे धीरे इंशाअल्लाह आपकी जिंदगी डेवलपमेंट होगी और एक दिन आप अल्लाह के नेक बंदे बन जाएंगे। तो रब तबारक व तआला हमें और आपको नेक और एक बनने की तौफीक अता फरमाए। क्योंकि मेहमान बहुत ज्यादा है और मेरी आदत नहीं है आपका ज्यादा टाइम लेना। इंशाअल्लाह जिंदगी ने वफा किया, आपसे मुलाकात होगी। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम।